ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے چمن میں ایک اور پھول کھل گیا۔ سٹی 42، چینل 24، سٹی 41، UK 44 اور روہی کی شاندار کامیابی کے بعد ہم آن پہنچے ہیں ہمارے اپنے پیارے شہر کراچی میں۔ اب بات ہوگی صرف اور صرف کراچی کی، مسائل ہوں گے صرف کراچی کے، ہم پہنچیں گے ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر محلے میں۔ سٹی نیوز نیٹ ورک نے اپنا سفر کب اور کیسے شروع کیا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میڈیا نیٹ ورک شہر شہر گلی گلی پہنچنے لگا۔ 13 سال پہلے شروع ہونے والا کامیابی کا یہ سفر زندہ دلان کے شہر لاہور سے شروع ہوا، پھر لاہور کے ساتھ ساتھ ہم نے پاکستانیوں کو 24 گھنٹے باخبر رکھنے کی ٹھان لی اور چینل 24 کے نام پر پاکستانیوں کو دیا ایک اور تحفہ۔ پھر مختصر ترین دورانیے میں ہی فیصل آباد کے شہریوں کو آواز ملی جس کا نام ہے سٹی 41۔ یہی نہیں، سٹی نیوز نیٹ ورک 4 کی صورت میں اوورسیز پاکستانیوں کو دی نئی پہچان۔ کامیابیاں سمیٹتا یہ قافلہ پھر جنوبی پنجاب کی جانب روانہ ہوا۔ روہی نے سرائیکی خطے کے باسیوں کے دل جیتنے کے بعد ہم نے رخت سفر باندھا ہے شہر قائد کی جانب۔ شہر قائد کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا ہماری نظروں سے اوجھل۔ ہم پہنچیں گے آپ کی دہلیز پر، ہر گلی، ہر کوچے، ہر محلے میں آپ کی بات حکومتی ایوانوں تک پہنچائیں گے۔ ہم پہنچیں گے شہر قائد کے ان علاقوں میں جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ شہر قائد کو سالوں سے تھی جس کی کھوج، ہم بنیں گے وہ مسیحا۔ ہم شہر قائد کا نوحہ ان منتخب نمائندوں تک پہنچائیں گے جنہیں اپنے حلقوں کی خبر نہیں۔ مظلوم کی صدا، اس کی آہو پکار اور ظالم کے ظلم ہم لائیں گے منظر عام پر، کیونکہ ہم نے شہر قائد کے ہر مسئلے پر بات کرنے کی لی ہے ٹھان۔ دہاڑی دار طبقے نے پیٹ پر باندھے کیوں پتھر، سرمایہ دار نے کیے ہیں کیا کیا ستم، ہم رکھیں گے حکومت کو لمحہ بلمحہ باخبر۔ تاجروں کو درپیش ہیں کیا مسائل، ان کی آواز آج تک کیوں نہیں پہنچی اقتدار کے ایوانوں تک، ہم ہیں تاجروں کی آواز۔ شہر قائد میں تعلیم کا حال کیا ہے، طلبہ اساتذہ کے مسائل پر رکھیں گے ہم خصوصی نظر، اور بات ہوگی کراچی کے معیار تعلیم کی۔ ابر رحمت کراچی کے باسیوں کے لیے کیوں بن جاتا ہے زحمت، نالوں کی صفائی سے لے کر گلی محلوں کے سیویج مسائل تک، سیاسی ہلچل سے لے کر مزدور کے گھر تک، سرکاری محکموں کی کارکردگی سے لے کر جرم کی دنیا تک، کاروبار کی باتوں سے لے کر کھیل کے میدانوں تک، ہم ہوں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ شہر قائد کے باسیوں کو مل گئی ہے آواز۔ شہر قائد کی آواز، سٹی 21۔ کراچی کی آواز، سٹی 21 نیوز آ گیا۔ اب شہر قائد کا کوئی مسئلہ چھپا نہیں رہے گا۔ شہریوں کے مسائل ہوں یا تاجروں اور صنعتکاروں کی مشکلات، سٹی 21 بنے گا سب کی آواز۔ ہو گیا انتظار، اب گونجے گی کراچی کی آواز۔ میڈیا گروپ سٹی نیوز کے چینل سٹی 21 کا افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بٹن دبا کر سٹی 21 کا افتتاح کیا۔ شہر قائد کے مسائل اب چھپیں گے نہیں، سٹی 21 شہر کا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ پہنچائے گا اقتدار کے ایوان تک۔ شہر کا پوش علاقہ ہو یا کچی آبادیاں، سب کے مسائل اجاگر کرے گا سٹی 21۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہوں یا پھر بے حال ٹرانسپورٹ، پارک، ساحل اور کھیل کے میدان، کچھ بھی ناظرین کی نظروں سے اوجھل نہیں رہے گا۔
सिटी 21 के इफ्तिताह पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि उम्मीद है सिटी 21 हुकूमत के मस्बत कामों को भी उजागर करेगा। मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि सिटी 21 और चैनल से भी, और ख़ास तौर पे इसलिए कि आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड वो रीजनल चैनल, जैसे मैंने कहा कि और नेशनल रीजनल चैनल के आपके और शहरों में, बाकी तो जो रीजनल चैनल्स हैं वो किसी एक शहर तक सिर्फ महदूद हैं, तो आप एक कंपैरेटिव, इसलिए कि मसाइल तो हैं, एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर सकेंगे। वजीर तालीम सिंध सईद गनी ने कहा, आप शहर के मसाइल बताएं, हम हल करेंगे। जिस तरह लाहौर में आपका अलग से चैनल है, फैसलाबाद में है, लंदन में है और साउथ पंजाब में है, तो इसी तरह कराची के लिए एक बिल्कुल जो शहर के इश्यूज़ हैं उस पर एक चैनल आएगा और इंतजार तो यकीनन लोग कर रहे थे। और वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, उम्मीदें हैं सिटी 21 कराची के मसाइल मजबूत अंदाज में उजागर करेगा। सिटी 21 और इससे बड़ी उम्मीदें हैं, हम बड़े पुरुमीद हैं कि आप असल हक़ाइक़ लोगों तक लाएंगे और जो लोगों की असल इश्यूज़ हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके तवस्सुत से सबके सामने आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने भी इफ्तिताह पर सिटी 21 को मुबारकबाद पेश की। ये रोशनियों का शहर है, ये वो शहर है जो पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है, वो शहर है जिसमें जो मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान के हर तूल और से बंदा आके यहाँ पे रहता है अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का कराची के बासियों के लिए तोहफा, सियासी शख्सियात का नेक ख्वाहिशात का इजहार। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि आप कराची बेस्ड चैनल लॉन्च कर रहे हैं। कराची वालों की इसकी ज़रूरत है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1-2 चैनल्स हैं, मगर जितने चैनल ज़्यादा आएंगे उतना ट्रांसपेरेंट होगा। क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी दे ताकि कराची के जो मसाइल है उसमें हमारा साथ दे और हम कराची के मसाइल को बेहतर तरीके से आप लोग उजागर करेंगे और हम लोग भी इंशाअल्लाह ताला अपने कराची के मसाइल में शाना बशाना होंगे। सिटी 21 मैं समझता हूँ क्राची के मसाइल को मज़ीद अच्छी तरीके से उजागर करेगा और मेट्रो चैनल वैसे ही ज़्यादा इफेक्टिव और पॉपुलर होते हैं, मैं समझता हूँ ये अच्छा इजाफा। सिटी 21 जो कराची के हवाले से आ रहा है तो यकीनन मैं समझता हूँ कि एक अच्छी नुमाइंदगी होगी और होनी भी चाहिए, और इन चैनल्स के ज़रिए जो है ज़ाहिर हम लोगों को सबको आगाही होती है। मीडिया है और मैं मीडिया को मुबारकबाद दूंगी कि बहुत सारा मीडिया जो है वो बाइस नहीं है और आज़ादी से काम कर रहा है। अगर इसी तरह मीडिया काम करता रहे तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह हमें बहुत सारी खबरें मीडिया के ज़रिए मिलती हैं तो हम आवाम की बेहतरी के लिए मज़ीद बेहतर काम कर सकते हैं। और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से एक दफ़ा फिर मुबारकबाद दूँगी। खुशाइन फैसला है, आपको आपके चैनल को वेलकम करते हैं और जैसे 24 रिपोर्टिंग कर रहा है वैसी उम्मीद करते हैं कराची के लिए अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे। मीडिया के ज़रिए ख़बरें आती हैं, आवाम को मिलती हैं, वो एक ज़रिया बन चुका है आसानी से कोई भी न्यूज़ मिलने का आवाम को। हम समझते हैं कि कराची के मसाइल अगर हैं वो हम सबके हैं, किसी भी एक कम्युनिटी या किसी भी एक पार्टी के नहीं, और हम सब मिलकर उनको हल करेंगे। हम समझते हैं कि कराची के मसाइल अगर हैं वो हम सबके हैं, किसी भी एक कम्युनिटी या किसी भी एक पार्टी के नहीं, और हम सब मिलकर उनको हल करेंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त, मैं मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह उसमें और बेहतरी ले आएंगे जहाँ जहाँ काम करने की ज़रूरत। सिटी 21 की नशरियात शुरू होने पर शहर की मुख्तलिफ शख्सियात ने खैर मकदम किया है। उन्होंने सिटी 21 की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। ये जो सिटी चैनल खुला है क्योंकि ये लोगों की बातें ऊपर तक पहुंचाता है और सच्चा चैनल है, इसमें कोई झूठ नहीं है। कराची के रेड़े वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, बस वालों की नुमाइंदगी करने के लिए अब आ गया है आपका 21, और इसी की शायद ज़रूरत है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि 21 हक अदा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि चैनल C21 कराची की भरपूर आवाज़ बन जाए और कराची के मसाइल के हल और यहाँ के शहरियों की जो मुश्किलात हैं उनके ख़ात्मे के लिए नवीद साबित हो। मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आप अपना सिटी चैनल नया लॉन्च करने जा रहे हैं कराची के लिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारी इंडस्ट्री के मसाइल को और कराची के जो मसाइल हैं आप उनको अच्छी तरीके से रेस करेंगे। आज के दिन चैनल 21 लॉन्च करना एक बहुत ही खुशाइन बात है। मैं दुआ करती हूँ कि अच्छी सहाफत करेंगे। हमारी नेक तमन्नाएं सिटी 21 के साथ हैं और उम्मीद करते हैं आज आज़ादी के दिन इंशाअल्लाह ताला सिटी 21
भी उसी तरीके से अपने इस मुल्क का हक अदा करेगा जिस तरीके से दूसरे चैनल्स कर रहे हैं। बहुत ही मुबारक दिन पे आपके चैनल का आगाज़ हो रहा है सिटी 21, और हर साल हम जब भी अपने पाकिस्तान का यौम आज़ादी मनाएंगे आपकी भी सालगिरह होगी। मैं समझता हूँ कि इस किस्म का मीडिया कराची के लिए इस वक्त की आवाज़ हो सकता है, ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से कराची मसाइल में घिरा हुआ है और कोई पुरसान हाल नहीं है। आपका चैनल जो है वो सिटी लेवल पे भी लॉन्च हो रहा है और ये बहुत बड़ी ये खिदमत है, बहुत बड़ा काम है। मुझे आज ये सुन के बड़ी खुशी हुई कि सिटी 21 जो है चैनल आज स्टार्ट हो रहा है। इस पे मैं इसकी इंतज़ामिया को मुबारकबाद देता हूँ। आज के दिन बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक तो ये चैनल भी खुला है और आपने पार्टिसिपेट भी किया है। मैं अपने और अपने इदारे की जानिब से सिटी 21 चैनल को मुबारकबाद पेश करती हूँ। हमें उम्मीद है कि हम अच्छी खबरें इस अपने शहर के हिसाब से सुनेंगे। 21 चैनल ऑन एयर होने जा रहा है और हमारी इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुबारकबाद दूंगा C21 सिटी 21 के मालकान को और खुशामदीद कहूँगा और दुआ गो हूँ कि अल्लाह उन्हें कामयाब करे। आपने चैनल लॉन्च किया और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे मसाइल, हमारी प्रॉब्लम्स को इस तरह उजागर करें कि हमारे जो इक़्तिदार आला जो लोग बैठे हुए हैं उन तक आवाज़ जाए। कराची स्पेसिफिक मसाइल दरअसल पाकिस्तान के मसाइल हैं, उसको उसकी अक्कासी करने के लिए इस तरह की कोशिशों की हौसला अफजाई होनी चाहिए और हमें उम्मीद है कि सच्चाई के साथ और खौफ के बगैर ये चैनल अपना हक अदा करेगा। मैं सिटी चैनल 21 के मालिकों और मैनेजमेंट को इस चैनल के इनॉग्रेशन पे मुबारकबाद पेश करता हूं और नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं। ये एक बहुत अच्छा स्टेप है कि हम कराची के लिए आवाज़ उठा सकें, हम कराची की बेहतरी के लिए जो है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म आ गया कि हम अपने प्रॉब्लम्स को जो है वहाँ पे। एक तरफ कराची पुलिस चीफ का मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म, तो दूसरी जानिब 6 माह में गिरफ्तार होने वाले 600 से ज़ायद मनशियात फरोश नाकिस तफ्तीश और अदम सबूत की बिना पर जमानत पर रिहा हो गए। बिल्कुल, आपको बताएं, एक तरफ कराची पुलिस चीफ का नशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, तो दूसरी जानिब 6 माह में गिरफ्तार होने वाले 600 से ज्यादा नशियात फरोश नाकिस तफ्तीश और अदम सबूत की बिना पर जमानत पर रिहा हो गए। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। एक जानिब कराची पुलिस चीफ जो है वो मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे रहे हैं और पुलिस बेदर पे जो है मनशियात फरोशों को गिरफ्तार भी कर रही है, तो दूसरी जानिब नाकस तफ्तीश के बायस जो है ये मुल्ज़मान जो है वो जमानतों पर रिहा हो रहे हैं। गुज़श्ता 6 माह के दरमियान लांडी जेल और सेंट्रल जेल से जो है बड़े 600 से ज्यादा मनशियात फरोश जो है वो जमानतों पर रिहा हो गए, जबकि इस हवाले से ज़राए ये भी बताते हैं कि बाकायदा जो है वकला का एक ग्रुप जो है वो इन मनशियात फरोशों को सपोर्ट करता है और बाकायदा इनकी जमानतें भी करवाता है, जबकि दूसरी जानिब नाकस तफ्तीश और जो तफ्तीशी पुलिस की अदम दिलचस्पी के बायस भी ये मनशियात फरोश बआसानी जमानतों पर रिहा हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी वजह सामने आ रही है कि नाकस तफ्तीश के बायस जो है वो जो है मनशियात फरोश रिहा हुए हैं। तो दूसरी जानिब जो कराची पुलिस चीफ की तमाम अहकामात जो हैं वो बज़ाहिर जो है वो नाकाम नजर होते हुए नजर आ रहे हैं। सबर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे और हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं, नए माली साल के आगाज से मुसलसल बढ़ती चीनी की कीमत पर बड़ा फैसला कर लिया गया है। एफबीआर ने चीनी की रिटेल कीमत पर सेल्स टैक्स पर अमल दरामद 5 माह के लिए मौखर कर दिया। डीलर्स का कहना है कि अब रिटेल के बजाय चीनी के एक्स मिल रेट पर सेल्स टैक्स लगने से चीनी की कीमत कम होगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। गरीब की पहुंच से दूर होती चीनी की कीमत पर एफबीआर का बड़ा फैसला। चीनी की रिटेल की सतह पर सेल टैक्स पर अमल दरामद 5 माह तक कर दिया। एफबीआर ने SRO 989/2021 जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अब ये कानून 1 दिसंबर 2021 से आयद होगा। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत चीनी पर सेल टैक्स रिटेल बुनियादों पर आयद किया गया था और ये कानून 1 जुलाई 2021 से नाफिज हो गया था, जिसके बाद मुकामी मार्केट में चीनी महंगी होने पर इस कानून पर गौर किया गया। चीनी की रिटेल सतह पर सेल टैक्स मौखर करने के फैसले के बाद चीनी की एक्स मिल कीमत पर सेल टैक्स आयद होगा। डीलर्स का कहना है कि चीनी की रिटेल कीमत पर यह टैक्स न लगने से चीनी की कीमत में कमी होगी। अशरफ खान, सिटी 21 न्यूज। पाकिस्तान का सबसे गुंजान आबाद शहर कराची पानी की शदीद किल्लत से दो चार है। 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में
پانی کی طلب دن بدن بڑھ رہی ہے، جسے پورا کرنے کے لیے شہری مہنگے داموں ٹینکرز خریدنے پر مجبور ہیں۔ سمندر کنارے بسنے والا کراچی بوند بوند کو ترس رہا ہے۔ شہر بھر کی طرح بلدیہ ٹاؤن میں بھی پانی کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ علاقہ مکین پانی کے حصول کے لیے اپنا سکون، وقت اور پیسہ تینوں صرف کرنے پر مجبور ہیں۔ شہر قائد میں قلت کے باعث پانی فروخت کا کاروبار بھی اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ پینے کے پانی کو ترستے شہری مہنگے ٹینکر خریدنے پر مجبور ہیں۔ کرایہ کر کے پیسہ دیتے، پانی لاتے ہیں، پانی نہیں میٹھا، ہم لوگ کارا پانی پیسے کے لیے لاتے ہیں، وہ کارا میٹھا پانی کا ادھر کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ پانی ہمارا کہاں جا رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب ہم غریب کھانا کھائے اس پیسوں سے، تنخواہ سے، یا پانی ڈلوائے۔ 650 روپے کی سوزوکی یہیں سے بڑھتی ہے، 2 قدم آگے جا کے ڈلواتا ہوں، 650 روپے لیتے ہیں سوزوکی والے۔ اور جب مہنگا کرنا ہو تو بلیک کرتے ہیں، بولا بھائی پانی نہیں ہے، پیچھے سے شارٹ ہے۔ نہیں، ہم لوگ پانی نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے۔ 800 روپے کا سوزوکی خرید رہے ہیں، صحیح ہے نا علاقے والے، اور 10-10 ہزار روپے کا 9-9 ہزار روپے کا ٹینکر خریدے۔ جب ٹینکر کے ذریعے ہم لوگ خرید سکتے تو وہ پانی ہمارے کو پائپوں کے ذریعے کیوں نہیں مل سکتا؟ ایک طرف کراچی والوں کے لیے پانی کا حصول دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے تو دوسری جانب پانی مافیا خاموشی کے ساتھ عوام کو لوٹنے میں مصروف ہے، جنہیں لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر کراچی کے بیٹے کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت و مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب نے بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی کا چارج سنبھال لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کی آمد سے قبل ملازمین کی دوڑیں لگ گئیں۔ مزید تفصیلات محمد کامران کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی خصوصی ہدایت پر کراچی کے ترقیاتی کاموں کو فوری طور پر مکمل کرنے اور KMC کے ادارے کو کرپشن سے پاک کر کے بہتر بنا کر شہریوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے بیرسٹر مرتضی وہاب کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا۔ ترجمان سندھ حکومت اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب KMC بلڈنگ پہنچے تو میونسپل کمشنر کراچی دانش سعید سمیت دیگر افسران نے استقبال کیا۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی کی KMC کے افسران سے تعارفی ملاقات ہوئی۔ نئے ایڈمنسٹریٹر کراچی کی آمد سے قبل KMC ملازمین کی دوڑیں لگ گئیں۔ KMC بلڈنگ کی دیواروں کو چمکانے کے ساتھ ساتھ فرش کو بھی دھو ڈالا۔ تعارفی ملاقات کے بعد ترجمان سندھ حکومت اور مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب نے بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل اور بلدیاتی اداروں کی کارکردگی میں بہتری لانے کے عزم کا اظہار کیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ میں نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اب شہر کی خدمت کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے آخر میں وہ چیز سٹارٹ ہونی ہے، انشاءاللہ حتی الامکان کوشش کی جائے گی کام سٹارٹ ہو، وہ لوگوں کو نظر آئے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا مزید کہنا تھا کہ اگر پیپلز پارٹی متعصب ہوتی تو میں یہاں نہیں ہوتا۔ میں ماضی کی باتیں نہیں، مستقبل کی بات کروں گا۔ تمام شہریوں کے تعاون سے کراچی میں مثبت تبدیلی لائیں گے۔ میں نے کہا پیپلز پارٹی متعصب ہے، تو اگر متعصب ہوتی تو میں یہاں نہیں کھڑا ہوتا۔ آپ نے کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ کا یہاں پر ہولڈ ہے، میں تو ماضی کی کوئی بات کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا، میں تو مستقبل کا سوچ رہا ہوں، آگے کا سوچ رہا ہوں۔ ترجمان سندھ حکومت و مشیر قانون بیرسٹر مرتضی وہاب کا بطور ایڈمنسٹریٹر کراچی میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ کراچی میرا شہر ہے، یہاں ادارے بھی ہمارے ہیں، مسائل کو حل کرنے کے لیے جس کے ساتھ یہ میرا اختیار نہیں، اس لیے میں سب کو یہی کہوں گا کہ آئیں مل کر شہریوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے اندازہ ہے مسائل کے انبار ہیں، اس کے لیے شہریوں کی مدد بھی درکار ہے۔ کیمرامین عمران ابراہیم کے ساتھ محمد کامران، 24 نیوز کراچی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کی KMC آمد کے بعد پہلی تبدیلی سامنے آئی ہے۔ آفاق مرزا کو ڈائریکٹر پارکس اینڈ ہارٹیکلچر کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا۔ آفاق مرزا کو عہدے سے فارغ کر کے HRM کے محکمے میں رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم نامہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمیٰ کراچی کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے۔ رضوان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس تبدیلی کے حوالے سے مزید جانیں گے۔ رضوان، آگاہ کیجیے گا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کے حکم کے تحت یہ حکم نامہ جاری ہوا ہے، جس میں DG پارک آفاق مرزا جو کہ حال ہی میں اس عہدے پر تعینات کیے گئے تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ HRM رپورٹ کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عہدے پر کس افسر کو جو ہے وہ تعینات کیا جاتا ہے۔ گریڈ 20 کی یہ پوسٹ ہے جو کہ ٹیکنیکل پوسٹ کہلاتی ہے۔ جی بہت شکریہ رضوان احمد ہمارے ساتھ تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पाकिस्तान से दुबई जाने वाले मुसाफिरों के लिए कोविड वबा की गाइडलाइंस जारी की गई है। गाइडलाइंस के नतीजे में एयरलाइंस ने पाकिस्तानी मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद को दुबई ले जाने से इनकार कर दिया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अशरफ बताइएगा। जी, मुत्तहिदा अरब इमारात ने अचानक से जो है नई जो है कोविड की जो है गाइडलाइन जारी की, जिसके तहत अब जो दुबई जाने वाले मुसाफिर को 4 घंटे कबल जो है रैपिड PCR टेस्ट कराना होगा, जो कि सर्विस यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कराची से दुबई जाने वाले 70 के करीब मुसाफिरों को जो रोक दिया गया था। यहाँ सिविल एविएशन ने ये वादे किया है कि बिना मुशावरत के फैसला किया गया है और सिफारती ताल्लुकात की बिना पर उनसे ये बताया गया कि जो गैर मुल्की एयरलाइन है जिसमें एमिरेट्स है और दीगर एयरलाइन है वो मुसाफिर को ले जाने से मना करें, क्योंकि नई गाइडलाइन है कि फौरी तौर पे यानी कि अगर मुसाफिर यहाँ से दुबई जाता है तो 4 घंटे कबल जो एयरपोर्ट पे रैपिड टेस्ट कराएगा, तभी उसको दुबई जाने की दाखिले की इजाज़त मिलेगी। बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीन फरोख्त करने के केस में गिरफ्तार 2 मजीद मुल्जिमान ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया, जबकि अदालत ने मुल्जिमा ताहिरा बानो और वकास की बुरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुमताज जमानी। कराची पुलिस ने कोरोना वैक्सीन घर घर जाकर फरोख्त करने के केस में तफ्तीश का दायरा बढ़ा दिया। गिरफ्तार दीगर 2 मुल्जिमान ने भी जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। मरकजी मुल्जिम अमान सुल्तान और मोहम्मद अली ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। इधर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुल्जिमा ताहिरा बानो और वकास की उबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो 9 अगस्त को सुनाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा ताहिरा बानो कॉन्ट्रैक्ट पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट वैक्सीनेशन तैनात थी और मुल्जिम वकास वैक्सीनेशन सेंटर में स्टोर कीपर था। परेडी पुलिस ने डिफेंस में स्टैंडिंग ऑपरेशन करके 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान अदालती रिमांड पर जेल में हैं, जबकि 2 मुल्जिमान ने हिफाजती जमानत हासिल कर रखी है। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री का आफ्ताब गुरूब हो गया। मारूफ ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट आफ्ताब उस्मान कराची में हरकतें कल बंद होने से इंतकाल कर गए। मरहूम आफ्ताब उस्मान को पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री के बानियों में शुमार किया जाता था। वो ब्रॉडकास्टिंग के शोबे में ज़्यादा तूली रखते थे। अपनी ज़ात में एक अंजुमन की हैसियत रखने वाले आफ्ताब उस्मान ने पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस को ब्रॉडकास्टिंग के असरात और रमूज सिखाए। उन्हें उर्दू, अंग्रेज़ी, फ्रेंच और डच ज़ुबानों पर उबूर भी हासिल था। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के तहत बनने वाले तमाम इदारों में भी अपनी खदमात पेश की और उन्हें हमेशा सिटी न्यूज़ नेटवर्क के अहम फ़र्द की हैसियत से जाना जाता था। मरहूम गुज़िश्ता कुछ अरसे से कोरोना में मुब्तला होकर दाखिल थे, जहां उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो अपने खाले की हकीकी से जा मिले।